Hello students, welcome back to my channel. In today's video, we will see George Orwell. Important author, exam point of view. Born in 1903, died in 1950, George Orwell. So his real name is Eric Arthur Blair. Born in 1903, India, Bihar, and died in 1950 due to the tuberculosis. George Orwell's father working as a opium department civil service in British India, and mother took him to England when he was first year old. So education is Eton College, England. Did not attend university. Important fact for exam. He never attended the university. George Orwell. So early career he worked as an imperial policeman in Burma. Then experience of colonial rule and deeply influenced his writing. And became a disillusioned with the British imperialism. His turning point of his life, he resigned from his post and returned to the England in 1928. This is how the family background. What are the major works of George Orwell? George Orwell के major works की बात करें तो Down and Out in Paris and London 1933 का वर्क है. नॉन फिक्शन मेमोर था ये. इसका थीम था पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी. डाउन एंड आउट इन पेरिस लंदन. देन उनकी फर्स्ट नॉवेल आई थी बर्मीज डेज 1934 में. क्रिटिक ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल. ही डिडंट लाइक दैट. एंड एसे ऑन इंपीरियलिज्म आल्सो ही रोट. हैंगिंग, शूटिंग एंड एलिफेंट. शूटिंग एंड एलिफेंट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया. शूटिंग एंड एलिफेंट, इट इज अ essay written by George Orwell. Both expose the brutality and moral conflict of the imperialism. Then political thoughts, strong opponent of the totalitarianism or the totalitarianism. So supporter of the वो democratic socialism को support करते थे. And totalitarianism or the totalitarianism, it is a term in English literature, or some are the totalitarian, वो उसके अपोन थे, मतलब उसके अपोज थे. What are the key statement? Every line he had written since 1936 had been directly and indirectly against the totalitarianism. Okay, so he is towards the democratic socialism. So let's see his first famous work, which is asked in the examination, that is Animal Farm. 1945 का वर्क है. एलेगरी है ये, एलेग्रिकल नॉवल. रशियन रेवोल्यूशन पे बेस है. रशियन रेवोल्यूशन एंड स्टैलिनिज्म. स्टैलिन corrupted socialist ideas. Stalin, then the animals are alleged as the real character of the Russian Revolution and the Stalin and all. And animal के form में there is a pigs, okay, horse and all. The next work is 1984. It is also important. Dystopian novel है उनकी. Surveillance state, totalitarian control, loss of individuality. इस तरह की थीम हमें 1984 में देखने को मिलती है. उनके important major essay की बात करेंगे. important essay है Inside the Well, Review of Tropic of Cancer. Other key essays भी उन्होंने लिखे हैं. Political and Literature, Role of Writer in Society. Where I lacked a political purpose, I wrote Lifeless book. ये उनका फेमस कोट था. ऑरवेल की राइटिंग के की थीम्स की अगर बात करें तो एंटी टोटलिटरियनिज्म, उन्होंने टोटलिटरिज्म के अगेंस्ट लिखा था. क्रिटिक ऑफ इंपीरियलिज्म भी उन्हें पसंद नहीं था. सोशल इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इन लिटरेचर, पावर, कंट्रोल एंड प्रोपेगेंडा. मेजर वर्क की क्रोनोलॉजी देख लेते. नॉन फिक्शन, उनके पहला नॉन फिक्शन वर्क था डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन 1933. हैंगिंग इन 1936. शूटिंग एंड एलिफेंट 1936 अगेन. हैंगिंग और शूटिंग एंड एलिफेंट की एक ही डेट है. द रोड टू वीगन पियर इन 1937. होमेज टू कैटालोनिया 1938. चार्ल्स डिकेंस नाम का एक वर्क उन्होंने लिखा था 1939. इनसाइड द वेल 1940. The Lion and the Unicorn, Socialism and the English Genius 1941. Why I Write 1946. इस पे एक इसका कोटेशन पूछा गया था कि जॉर्ज ऑरवेल का एक कोटेशन दिया गया था और पूछा गया था ये कौन से वर्क का कोटेशन है. ठीक है, तो Why I Write 1946. Politics and English Language 1946. Such a Such Were the Joys 1946.
नॉवेल्स उनके बर्मीज डेज नॉवेल उनका पहला नॉवेल था, 1934 में आया था। क्लर्जीमैन्स डॉटर 1935, कीप द एस्पीडिस्क ट्रैप फ्लाइंग 1936, कमिंग अप फॉर एयर 1939 एंड एनिमल फार्म 1945 एंड 1984 एक उनका Big Brother is watching like the storm is given. So this is how the chronology of his novel. तो एनिमल फार्म जो इम्पोर्टेंट वर्क है 1945 टू 1946 का, उसकी की डिटेल्स देख लेते हैं। इंग्लैंड में पब्लिश हुआ था ये। देखो हमें ना लास्ट हम 2024 का महाराष्ट्र सेट का क्वेश्चन पेपर देखे तो हमें कौन से पब्लिशर के अंदर पब्लिश हुआ है ये भी पूछा गया है वर्क्स। उसके बाद कहाँ पब्लिश हुआ है, फर्स्ट पार्ट अगर इंडिया में है तो दूसरा कहाँ पब्लिश हुआ है, इस तरह के पब्लिशिंग के ईयर पूछे गए, कहाँ पब्लिश हुआ है वो भी पूछा गया है एंड पब्लिशर्स का नाम भी पूछा गया है। सो ओरिजिनल टाइटल एनिमल फार्म अ फेरी स्टोरी। जॉनरा क्या है इसका, एलेगरिकल नॉवेल है ये, पॉलिटिकल सटायर है एंड डिस्टोपियन फिक्शन है। तो बैकग्राउंड देख लेते हैं। रिटन इन 1943 नवंबर टू फरवरी 1944 ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड व्हेन ब्रिटेन सपोर्टेड टू सोवियत यूनियन। अवार्ड भी मिले इस वर्क के लिए, ह्यूगो अवार्ड 1996, क्रिटिक ऑफ रशियन रेवोल्यूशन इन 1917 एंड स्टैलिनिज्म। So conceptual understanding of the animal farm, it is a story represent the political reality. Political reality दिखाती है एक ideal society कैसे होनी चाहिए, क्या चल रहा है दुनिया में, how the oppressive unequal society is there, utopian dream became dystopia, all animals are equal but some animals are more equal than others। ये animal farm का एक famous quotation है। कैरेक्टर कौन कौन से एनिमल फार्म में, ओल्ड मेजर है, एक विजनरी पिग है, बूढ़ा पिग who introduced the animalism and inspire for the revolution. Then Napoleon, power एक hungry pig है who became the tyrannical dictator like a Napoleon Bonaparte. Then Snowball, intelligent and progressive leader है Snowball who planned reforms but is exiled. Squealer है manipulative propagandist है, twist truth to justify the Napoleon's action. Boxer नाम का another character है, loyal and hardworking horse है ये boxer, रिप्रेजेंट करता है एक्सप्लॉइटेड वर्किंग क्लास। क्लोवर है केयरिंग एंड मदरली हॉर्स हु सेंस इनजस्टिस बट कैन नॉट अपोज इट। देन बेंजामिन, काइनिकल डंकी है ये, काइनिकल डंकी हु अंडरस्टैंड रियलिटी बट रिमेन साइलेंट, उसे पता है कि क्या चल रहा है फिर वो चुपचाप रहता है। देन मोली, मोली एक वेन एंड सेल्फिश हॉर्स हु हैज प्रेफर कंफर्ट ओवर रेवोल्यूशन। मिस्टर जोन्स है negligent farmer whose rule triggers the rebellion. Mr. Pillington, easygoing neighboring farmer representing the capitalist leadership. Mr. Frederick है cruel and deceitful farmer है। Moses Raven है एक who spread the false hope through the religious myth. Then the dogs, Napoleon's private army used to enforce fear and control, and the sheep, blind followers, उन्हें sheep कहा गया है। स्टोरी बिगिनिंग व्हेन द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन। द स्टोरी बिगिन होती है एक मैनर फार्म से जिसके ओनर है मिस्टर जोन्स। मैनर फार्म के ओनर का नाम है मिस्टर जोन्स। केयरलेस है, ड्रंकन है, पीते रहते हैं फार्मर। और एक रात क्या होता है, एक सारे एनिमल एक साथ आ जाते हैं बांध पे एंड टू हियर द ओल्ड मेजर एंड ओल्ड पिग। ओल्ड मेजर शेयर हिज विजन टू द वर्ल्ड वेयर एनिमल्स लिव फ्री फ्रॉम द ह्यूमन ऑपरेशन। मतलब हम क्यों रहे, हमें फ्री रहना चाहिए फ्रॉम द ह्यूमन ऑपरेशन। ही टीचर्स, वो पढ़ाते फिलोसॉफी ऑफ एनिमलिज्म विच इज बेस्ड ऑन द इक्वालिटी यूनिटी अमंग द एनिमल्स। वो आर्ग्यू करते हैं ह्यूमन एक्सप्लॉइट एनिमल एंड द रूट कॉज ऑफ द सफरिंग। सून आफ्टर डिलीवरिंग हिज स्पीच ओल्ड मेजर डाइज बट हिज ड्रीम्स रिमेन अलाइव। स्टोरी क्या है इसकी, द एनिमल इंस्पायर्ड द ओल्ड मेजर आइडियाज, बिगेन टू प्रिपेयर फॉर द रिबेल एंड गेट फ्रीडम एंड लीडरशिप इज टेकन बाय टू पिग। टू पिग उनके लीडर बन जाते हैं। व्हाट डू यू वांट? स्नोबॉल एंड नेपोलियन। वन डे मिस्टर जोन्स जो मैरिन फार्म के मैंने फार्म का नाम बताया था अभी यहाँ पे, मैनर फार्म, उसके जो ओनर है मिस्टर जोन्स फॉरगेट टू फीड द, एक दिन वो खाना देना भूल जाते हैं एनिमल को और स्टार्विंग से और एंगरनेस से उनकी हालत खराब हो जाती है। एनिमल रिवोल्ट कर लेते हैं, सक्सेसफुली ड्राइव मिस्टर जोन्स एंड हिज मेन ऑफ द फार्म। दे रीनेम द फार्म एनिमल फार्म और मैनर फार्म का नाम वो एनिमल फार्म रख लेते हैं एंड एस्टेब्लिश द 7 कमांड्स भी वो फॉलो करते हैं या एस्टेब्लिश कर लेते हैं। पहला होता है ऑल एनिमल आर इक्वल,
दूसरा कमांड होता है दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू होपफुल सोसाइटी, मतलब सब एनिमल इक्वल है। दूसरा है दिस मार्क, ये शुरुआत है होपफुल सोसाइटी की। ओके, तो इनिशियली एवरीथिंग गोज वेल, सब अच्छा जा रहा है, एनिमल एक साथ आ जाते हैं, रिवोल्ट करते हैं एंड स्नोबॉल प्रूव्स टू बी एन एनर्जेटिक एंड इंटेलिजेंट लीडर। वो ऑर्गेनाइज करता है कमिटीज, एजुकेशन देता है एनिमल्स को, प्रपोजेस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द विंड मिल टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी एंड रिड्यूस द लेबर। दिस पीक ग्रेजुअली टेक लीडरशिप रोल बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस। कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है स्नोबॉल एंड नेपोलियन में। सून पावर स्ट्रगल बिगिंस विद द स्नोबॉल एंड नेपोलियन। स्नोबॉल सपोर्ट्स द प्रोग्रेस एंड इनोवेशन व्हाइल नेपोलियन इज मोर सिक्रेटिव एंड मोर ओरिएंटेड। व्हेन स्नोबॉल रिप्रेजेंट हिज विल, मतलब स्नोबॉल बताता है कि हम विंडविल प्लान कर रहे हैं, तो नेपोलियन उसको अपोज कर लेता है। सडनली नेपोलियन अनलिशेस अ पैक ऑफ ट्रेन डॉग्स एंड हु कैच द स्नोबॉल अवे फ्रॉम द फार्म। सो दोनों में एक क्लैश हो जाता है, नेपोलियन एंड और किसमें, स्नोबॉल में, जो कि दोनों क्या थे, पिग लीडर थे। फिर डिक्टेटर्स की शुरुआत हो जाती है। नेपोलियन बिगिन रूलिंग लाइक द डिक्टेटर, वो डिक्टेटर की तरह यूजेस द स्क्वेलर अनदर spread propaganda and convince the animal to all decision are for their benefit. Interestingly, Napoleon later adopt the windmill idea and original ये आइडिया स्नोबॉल का था और खुद के नाम पे कर लेता है। The animal को फोर्स करता है वर्क हार्ड, स्पेशली बॉक्सर स्ट्रॉन्ग एंड लॉयल हॉर्स है जो बिलीव करता है आई विल वर्क हार्डर, नेपोलियन इज ऑलवेज राइट, डिस्पाइट देयर एफर्ट द एनिमल रिसीव लेस फूड। मतलब वो एनिमल्स के ऊपर डिक्टेटरशिप करना शुरू करता है, काम तो ज्यादा करवा लेता है पर खाना भी कम दे रहा होता है, लाइक दैट। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट एंड बैटल्स। मिस्टर जोन्स एंड हिज मैन ट्राई टू रिकैप्चर द फार्म। ये जो इंसान है वो रिकैप्चर करने की कोशिश करते हैं बट एनिमल डिफीट देम, बट एनिमल से वो हार जाते हैं। बैटल होता है काउ शेड पे, लेड बाय द स्नोबॉल। अनदर फार्मर फ्रेडरिक अटैक्स द एनिमल फार्म। अनदर एक फार्मर है फ्रेडरिक, वो क्या कर लेता है, अटैक कर लेता है और विंडमिल को डिस्ट्रॉय करता है। एनिमल्स फिर से उसे हार्ड वर्क करके रिबिल्ड कर लेते हैं। नेपोलियन यूजेस दिस कॉन्फ्लिक्ट द स्ट्रेंथन हिज कंट्रोल, स्प्रेड फियर अमंग द एनिमल। करप्शन इसमें आ जाता है। ग्रेजुअली द पिग बिगेन टू अडॉप्ट, पिग भी एनिमल की मतलब ह्यूमन का बिहेवियर अपना लेते हैं। दे मूव इनटू द फार्म हाउस, स्लीप इन बेड्स, ब्लेड्स पे सोने लगते हैं। जैसे ह्यूमन अल्कोहल कंज्यूम करते हैं वैसे एनिमल भी अल्कोहल कंज्यूम करने लगते हैं। ट्रेड विद द ह्यूमंस। और सेवन कमांड्स जो उन्होंने बनाई थी ना, वो चेंज होने लगती है। सीक्रेटली टू जस्टिफाई द एक्शन, जैसे कि नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल बिकम्स नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल टू एक्सेस। दिस शो हाउ लॉ आर मैनिपुलेटेड। जैसे ना पावर आते ही लॉ कैसे बदल जाते हैं, एक सत्ता में है तो अलग रूल से, दूसरा आ जाएगा तो दूसरा बना देगा। जैसे बॉक्सर की ट्रेजेडी देखने को मिलती है इसी एलेगरी में हमें। बॉक्सर द मोस्ट हार्ड वर्किंग एनिमल है, एक हॉर्स है, वो बिकम वीक होने लगता है, बहुत ज्यादा उससे काम करवा के लेते हैं इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिम। और जब वो बूढ़ा हो जाता है और उसकी हेल्प करने की जगह जब वो बूढ़ा हो जाता है, नेपोलियन उसे बेच देता है, बॉक्सर टू द स्नैकर, ग्लू मेकर को बेच देता है बॉक्सर को। तो इस इज द ट्रेजेडी ऑफ द बॉक्सर। बॉक्सर एक हॉर्स है। स्क्विलर लाइज टू द एनिमल, स्क्विलर एनिमल को झूठ बोलने लगता है, क्लेम करने लगता है बॉक्सर डाइड पीसफुली इन अ हॉस्पिटल, बेचारा बॉक्सर मर जाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक मोमेंट कम्स इन द लाइफ ऑफ वर्किंग क्लास। बहुत ब्यूटीफुली एक एलेगरी बताने की कोशिश की है एनिमल फार्म ने। इट्स अ ब्रिलियंट वर्क। नेपोलियन बिकेम द मोर ब्रूटल एंड बिगेन, और नेपोलियन और ज्यादा डिक्टेटर और ब्रूटल होने लगता है। एनिमल्स कन्फेस टू क्राइम, फियर एंड वायलेंस, उनके माइंड में फियर वायलेंस डोमिनेटली भर देता है। एनिमल को नो लॉन्गर इक्वल, वो इक्वल भी नहीं समझता है। वर्स देन द, मतलब पहले तो ह्यूमंस थे तभी थोड़ी हालत ठीक ठाक थी, उससे भी वर्स हो जाती है। पिग ग्रो फैटर एंड मोर पावरफुल, अदर एनिमल्स सफर। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन इन द फाइनल स्टेज, पिग स्टार्ट वॉकिंग ऑन टू लेग। जैसे ह्यूमन चलते हैं ना, वैसे पिग भी दो पैरों पे चलना शुरू करते हैं। 7 कमांड्स आर रिड्यूस टू 1, ऑल एनिमल आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल, ऐसा हो जाता है। द फार्म इज रिनेम बैक टू, फिर वापस से उसका नाम मैनर फार्म रखा जाता है जो पहले था।
मैनर फार्म से एनिमल फार्म से वापस मैनर फार्म बना दिया जाता है। और एंडिंग के सीन में क्या होता है, पिग एंड ह्यूमन सिट टुगेदर, ड्रिंकिंग एक साथ करने लगते हैं, प्लेइंग कार्ड्स टुगेदर। अदर एनिमल वॉच देम फ्रॉम आउटसाइड द विंडो एंड रियलाइज, बाकी के एनिमल उनको विंडो से देखकर उनको पता चलता है कि हाउ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द पिग एंड ह्यूमन, मतलब ह्यूमन हम पे अत्याचार करते थे इसलिए हमने रिबेल किया, और पिग हमारे क्या बन गए, रूलर, वो भी वैसे ही बन गए। नथिंग डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमन एंड पिग। Okay, so this is how the Stuffing allegorical story try to explain in this video. If you like my video, then like, share and subscribe my channel.